شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کوہر فقیرہ کا علاقہ ہے جی، اور یہ تحصیل علی پور کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ اب یہاں جو واقعہ ہوا ہے اتنا خوفناک ہے، اذیت بھرا، اور اس کی ابتدا محبت کے بھوت سر پر چڑھنے سے ہوئی ہے۔ ایک خاتون منکوحہ ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دی ہے، اختلافات کی صورت میں خاتون علیحدگی لیتی ہے، وہ بچہ اپنے ساتھ آ جاتا ہے اور خاتون ایک دوسرے شخص سے نکاح کرتی ہے، اور وہ نکاح کی کہانی جو ایک حلال رشتے سے شروع ہوتی ہے، اس لمحے وہ اس موڑ پر کھڑی ہے کہ خاتون کا دوسرا شوہر اس کے بیٹے کو قتل کر چکا ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اور قتل جس بے دردی کے ساتھ کیا گیا ہے یہ خوف کی علامت ہے۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے اپنے عزیز و اقارب کی طرف جانے کے لیے، ایونچولی ہوتا یہ کہ وہ اپنے ہی سوتیلے باپ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اس وقت جب اس کا باپ اس کو ٹانگوں سے پکڑتا ہے، الٹا اٹھاتا ہے، سر کے بل فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے جو نالے اور کھالے بنائے جاتے ہیں، اس کھالے کے اندر اس کا سر ڈبو دیتا ہے، اس کو اندر گرا کر اوپر سے پاؤں رکھ لیتا ہے، بچہ غوطے کھاتا ہے، اور دم گھٹنے پر ایونچولی وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، وہ رذیل، ناپاک، بدبخت، درندہ صفت انسان جو ہے اس بچے کو وہیں بھیڑیوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، نکالتا ہے، فصلوں میں پھینک دیتا ہے، اور پھر اتنی سادگی کے ساتھ گھر کے جانے بڑھ جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اگلے دن پورا خاندان، قبیلہ، گاؤں مل کر اس کو تلاش کرتے ہیں، بچہ نہیں ملتا۔ اگلے دن وہ بچہ کٹا پھٹا ملتا ہے، جانور اس کو جزوی طور پر کھا چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کہانی کو ایک اختلاف اور جائیداد کے تنازع کے ساتھ جوڑتے ہوئے جن لوگوں کے ذمہ یہ قتل ڈلوانا چاہتا تھا، جن کے ساتھ مبینہ اختلاف چل رہا تھا، وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس، اس کی ماں اندر موجود ہے، وہ ماں جس نے اس سے محبت کی تھی، اور یہ محبت کی شادی جس کو آج کل لو میرج کہا جاتا ہے، لو میرج کا بھوت ویسے بھی سوار ہے ہر جگہ۔ اس آبادی میں، اس گوٹھ میں، اس دیہات میں جب میں آیا ہوں تو میں نے پوچھا ہے کہ اس رذیل ناپاک انسان کو آپ لوگ جانتے تھے؟ تو اتنے سے لوگ ہیں جو صرف اس خاتون کی شادی کی وجہ سے اس کو جانتے تھے، باقی کچھ بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حقائق کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پر ایک بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس وقت کیمراز آن ہونے کے بعد خوش ہے، مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہے، اور وہ منہ میں انگلی ڈالے اپنا بچپنا انجوائے کر رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ پرویز کا بیٹا ہے، یعنی اس کے سگے باپ نے اس کے 6 سالہ بھائی کو قتل کیا۔ اس بچے کو نہیں پتا کہ اس کے باپ نے کیا گل کھلایا ہے، اور آنے والی زندگی میں اس کے لیے کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی بیٹھی ہے اور نانی بھی بیٹھی ہے۔ تکلیف سے بھری اٹی یہ کہانی ہے، یہ واقعہ جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور کسی پر ایسا وقت کبھی نہ آئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ والدہ ہیں بچے کی؟ جی، میں والدہ ہوں بچے کی۔ اور 6 سال عمر تھی آپ کے بیٹے کی؟ جی۔ آپ کے خاوند نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا؟ جی، اس نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کیونکہ آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا تھا، اختلاف تھا، کیا تھا؟ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن تھوڑا لڑائی جھگڑا یہاں سے ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ یہ ساتھ والا میرا کزن کا بیٹا ہے،
कज़न है मेरा, उसके साथ ऐसे जाती उसने कंधी से लगाई ना। दीवार से? जी हाँ, दीवार से। घर में देखा? जी हाँ, इसलिए। अच्छा, फिर उसी वजह से थोड़ी लड़ाई हुई थी। मार कुटाई हुई थी? नहीं, इतनी नहीं थी, हल्की मार झेड़ा लगा था। फिर चुप हो गई थी। हाँ। फिर उसके बाद पता नहीं गली में। आपने खामद का साथ दिया था या कजन का दिया था? मैंने फिर किसी का साथ नहीं दिया। तो आपका बच्चा क्यों मार दिया उसने? पता नहीं किस वजह से उसने मारा है। अम्मा किनिया धियां पुत्र है कि मेरे 2 बेटियां हैं। ते दूजी दी ब्याही हुई है? जी हाँ। ते ए दी नाल रहंदी है? ये दी नाल रहंदी, उनके 4 बेटे हैं बड़ी के, ये छोटी है। हाँ। ये छोटी वाली ਤੇ इथे ਇਹ ਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? जी हाँ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਨਾਇਆ ਸੀ? हाँ जी, भी ओ जाते नहीं ने वसाया वाला भी जाते निकाह किता सी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਪਹਿਲੇ? 3 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है जी अंदर सुती पई है। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਉਂਦੀ ਫਾਸਟ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वड्डा आप उनदा बाप घेन गया है, बाकी यो छोटा माए पले नहीं पिया, माए बेवा हम अब्बा ਹਾਏ। मां के मेरा सारा बाल पोसी सारा तो सारा हुंदो ते जुल्म करेंदा ही, बाहरों वेंदा ही, कुटेंदा ही, मरेंदा ही उनको। हाँ। इतने निशान पाए जाते हैं। शोदे को इतना बोतला मरेंदा ही ਇਹ ਪਹਿਲਾ पानी ਜਵਾਈ? ए वाला ਇਹ ਅੱਛਾ। परवेज ने ਹਾਂ ए शोदा बाहरों बच्चा वेंदा ही उनदे नाल जुल्म करेंदा ही, ਹਾਂ बोतला मरेंदा ही। वाला मैं लड़दी हम बेटा, ਹਾਂ। बोला मैं आदि हम क्यों तेरी जायदाद नहीं खांदा पिया, मैं आप मेहनत मजदूरी करते बच्चा पलेंदी पई परवेज 6 ਸਾਲਾ बच्चे को। ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, हाँ जी, ਸਿਰ जुल्म ਦੇ कर। ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। जी हाँ, मार मैं इसको करता हूँ, यानी वो तशद्दुद का आदी था और नानी के घर में रहता था। हाँ, नानी पाल दी पई है। जवाई भी थोड़े ना रहंदा सी? हाँ, वो भी थे रांदा है, कैसा गैरतमंद जवाई सी। इंसान है। तो तेरा ब्याह किमें हो गया? बस तकदीर ने कीता कि मैंने ब्याह करें दिया। पहले कुड़ी मुंडे ने आपस ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ? हाँ जी, हाँ जी। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਸੱਚੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ। जी हाँ, जी हाँ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ जी हाँ, जी हाँ, माँ बाप दी ਤੇ ਬਾਅਦ शादी। ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ जी ਗਏ। हाँ, जी हाँ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾ? बच्चे नाल इहो को जे घरे ना भांदा हा, उनको जुल्म करेंदा छो। देखो माए वारू थींदी हम ते वाल नानी मेरे ने नाल रोकी? नाराज थी पंदा, तू जन वारू की थी। मैं नानी मारता कोई नहीं गई, मैं जींदी हम, मैं जेतनी जींदी हम पले था। मेरा सारा बरसी, मेरा बेटा बरसी। ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਘੇਨ ਕੇ ਤੇ ਉਤਸ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਨੂੰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂ, ਪੁੱਠਾਂ ਕੋ ਸੱਟੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਰ ਖਾਲੇ 'ਚ? ਜੀ ਜੀ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ। आप वालिदैन बच्चे की, जी। कभी बच्चे की आंखों में कोई बगावत थी बाप के लिए? क्या था जो बाप को डरता खतरा था। महसूस- अच्छा, डरता था, बागी नहीं था? नहीं, डरता था हाँ। बहुत ज्यादा, उसके पास भी नहीं आता था। तो कोई बदतमीजी करता था बच्चा? नहीं, कुछ भी नहीं करता था, वो तो गरीब था। बच्चा गया कहाँ था? बाहर गया था, किसके पास? अकेला चीज लेने जाते हैं हाँ तो वहां से लेके गया है। हाँ। तो पहले भी जाता था इस बाप के साथ, परवेज के साथ? आप नहीं, पहले कभी नहीं गया, अकेला गया था। मारा कैसे परवेज ने? ये बात है कि यहाँ से लेके गए ना, गली में जैसे गया चीज लेने के लिए, वहीं से ये लेके गए। हमें नहीं पता, हम तो घर में होते हैं। शाम को आके जैसे 2 घंटे बाद आया, आके बैठ गया। कमीज भी गीला था। गीली थी? जी, कमीज भी गीली थी। काफी गीली थी या थोड़ी सी गीली? काफी गीली थी, ये कॉलर भी गीले थे। आपने नहीं पूछा कि क्यों गीले? नहीं, मैंने पूछा, उसने कहा कि मैंने किसी का पानी भरा है। हाँ। फिर कूलर मैंने भरा है, इसलिए मेरा कमीज गीला हो गया है। मैंने जब वो आपके बच्चे को कत्ल करके आए हैं, जी, तो उसका जब वो कमीज घर आया तो आपने उसको पानी शानी पिलाया होगा? मैंने कुछ नहीं दिया, मैं लेटी हुई थी। अच्छा। अम्मी उठ गई थी। हाँ। रात सारी? रात नहीं, मैंने शाम को देखा, मैंने कहा मेरा बेटा नहीं आया। मैंने अम्मी को कहा, हाँ। तो अम्मी ने कहा यहीं कहीं होगा। फिर ये भागने लगी, मैं भी 2 दिन ढूंढने रह गई। और वो क्या कर रहा था? वो तो आके बैठ गया था टीवी देखने। हाँ। हाँ। वो बैठ गया था टीवी यहाँ पे इधर रखा हुआ था, अंदर रखा हुआ? अंदर। सुकून से टीवी देख रहा? जी, आके वहीं से जैसे कमीज गीला था, तार पे डाल के फिर बैठ गया था टीवी देखने। आपकी उसकी कोई बात हुई? जाहिर है वो एक बच्चे का कत्ल करके आया है। उसने मुझे उसके कुछ नहीं ज़हन में- बचाया।
हाँ? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कोई तो बात की होगी उस हवाले से, नहीं किसी और हवाले से? कोई हवाले से नहीं। मैं 2 दिन ढूंढती रह गई, पागल हो गई थी। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो जब परवेज को पुलिस पकड़ के लगाई है तब तक बच्चे की डेड बॉडी मिल गई थी कि नहीं? इस टाइम अशा के बाद लेके गए थे ना, हाँ। तो सुबह को मिली थी। कैसे मिली थी? वो भी खेतों में पड़ी थी। हाँ। वहाँ कोई कचरा पड़ा हुआ था, जैसे गोबर बुलाते हैं, उसमें पड़ा था बच्चा। अभी क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये जैसे मेरे बेटे को किया उसने, उसे भी ऐसे इंसाफ मिला। पहली भी मोहब्बत थी सी? नहीं, हाँ। मुल्तान में रहती थी, मुझे किसी ने उठा लिया था। बहुत सारी लड़कियां थी। हाँ? बहुत सारी लड़कियां थी। अगवा किया था? जी, किसी ने अगवा किया तो वहाँ से बिक के गई थी। बिक के गई थी? जी ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, जी, ऐसे हुआ था। ये किसने अगवा किया था और किसने बेचा था? ये हम भी नहीं जानते किसने बेचा था, किसी ने नहीं बेचा। मुल्तान में क्या करते थे आप? मुल्तान में हम किसी कोठी पे काम करते थे। हाँ। मैं छोटी थी, क्या उम्र थी आपकी? मेरी थी 28 साल थी। 18। अच्छा, 18 साल। जी हाँ। तो अगवा फिर कैसे हो गई? कोठी से अगवा हुई थी? नहीं, दुकान पे सौदा लेने गई थी। ठीक है, तो कैसे अगवा हुई थी? बस वहीं से गाड़ी में आया था, उठा के ले गया था? बहुत सारी लड़कियां थी, मैं एक नहीं थी। जैसे चीज लेने जाते हैं रास्ते में, अकेले होते हैं। किसी जगह रखा था जाके? जी, वहाँ कितनी लड़कियाँ थी? बहुत सारी लड़कियां होती हैं। कितनी? 10-20 होती हैं लड़की। वो सारी अगवा होगी थी? जी, तो फिर वहाँ से छूटे कैसे? वो बेचने जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आईजी साहब, सीएम साहिबा, ये तो बड़ी कहानी बता रही हैं। जो कहानी सच बता रही हूँ। ये तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये अब की बात नहीं है, हाँ। पूरे 10-20 साल हो गए यही बात जितने है। भी हो गए हैं। आपकी उम्र कितनी है? पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, मुझे ये याद नहीं है। तो फिर वहां से उन्होंने आपको किसको बेचा? मोहम्मदपुर में। मोहम्मदपुर में बेच दिया? जी, वहाँ किसको? वहाँ कोई है, एक आदमी लेता है, बहुत सारी औरतें लेता है। उसने क्यों लिया? उसने मूल लेके फिर उसने बेच दिया किसी और को। तीसरे हाथ? जी। उसने किसको बेचा? उसने फिर वही उमरकोट वाले रहते हैं ना, वो लेने आते हैं। जो आपका खामंद था पहला? जी, उसने लिया। उसने आपको खरीदा? जी, यानी पहला खामंद आपका, उसने आपको खरीदा था? जी। आपने निकाह नहीं किया था? मैंने निकाह नहीं किया था, वहाँ सिर्फ जबरदस्ती निकाह हुआ था। वो भी शर्त ही हुआ था। शर्त क्या थी? शर्त ये होती है कि अदालत होती है एक, काजी जो होते हैं, जो काजी होते हैं वो ऐसे निकाह पढ़ाते हैं, शर्ती होता है। अच्छा, तो वो खामंद से फिर आपने तलाक ली? जी। उसने तो आपको खरीदा, तो उसने आपको तलाक क्यों दे दी? मैंने उससे तलाक इसलिए ली थी, किसी और पे मुझे मलामत दे के पैसे लेता था। दोबारा कहें? किसी और से मलामत दे के पैसे लेता था। वो आपसे गुनाह करवाता था? जी। चट्टियां गिनदा 2-2 पैसे 3-3 लेके? लाख। जी, पैसे लेता था। 5-5 आपके 6-6 साथ लाख। गुनाह करवाने का, अपनी बीवी के साथ गुनाह करवाने का पैसा लेता था? जी, इसलिए मैं वहाँ से मैंने तलाक लिया। और वो कितनी दफा ऐसा हुआ? ये तो हर टाइम होता है। बड़ी बीवी उसके साथ भी ऐसे होता है। अच्छा, उसकी और भी बीवी थी? जी, उसके 2 बीवियाँ। उमरकोट में? जी। सिंध में? वो भी यही चल रहा? उसकी 2 बीवियां उधर भी हैं और तीसरी आप? दूसरी मैं हूँ, एक और है, वो खाला की बेटी है। और आप फिर? इसलिए मैंने तलाक ली थी। और उसने आपको लेने दी तलाक? उसने नहीं लेने दी, मैंने अदालत से ली है, तंजीक करवाई है। तंसीख करवाई? जी। तो आप यहाँ आ गए थे? यहाँ जी। आके करवाई है? यहाँ नहीं करवाई थी, जमालदीन वाले, रहीमिया खां वाली साइड। यानी आपके दूसरे खामद ने, उसकी अम्मी ने करवाई थी। मेरी सुने, मुझे आपके पहले खामद से, जिसने आपको खरीद कर आपसे शादी की थी जी, और आपको इस्तेमाल करता था दूसरे मर्दों के लिए, जी, गुनाह करवाता था और पैसे लेता था, जी, उससे जान छुड़वाई आपके दूसरे खामद ने, जी, जिससे आपने मोहब्बत की शादी की। जी, जान छुड़वाने के एवज उसकी माँ ने तलाक करवाई थी जी, आपको? उसकी अम्मी ने तलाक। यानी आप वहां से उसके साथ भाग आई थी? जी, भाग नहीं आई थी, हाँ।
वो लोग आते थे हमारे घर में। वहां पर उमरकोट? जी वहाँ आते थे। अच्छा। तो उन्हें पता चला तो उसकी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो साथ देना पड़ेगा मैं दूंगी। वहां से आजाद हो गई आप? जी वहाँ खुश से थी? जी। इसी वजह से आपने इस लड़के से शादी कर ली क्योंकि इसकी माँ ने राजी थी। आपको आजाद करवाया? जी। अब इसका मतलब उसकी माँ अच्छी औरत थी। जी। आप उसके साथ क्यों नहीं रही? उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी ना। हाँ। तो इसके अब्बू राजी नहीं थे। अब्बू क्या कहते थे? इसका अब्बू कहता था ये ना है। उसका बाप पहली बीवी के साथ होगा? इसकी भी कोई बीवी और थी? अच्छा, इसका रिश्ता हुआ बता? परवेज की जो अब्बू है ना, हाँ। उसके अब्बू नहीं आने देते थे। अच्छा, फिर परवेज बाप से बगावत करके यहाँ आ गया? जी। और आपस में खुशी रह रहे थे? जी। और फिर उसने आपको बेटा मार दिया। नाज़रीन, ये अप्स एंड डाउन्स एक बम्पी राइड है और ये रोलर कोस्टर लाइफ है। जिस तरीके से खातून बता रही हैं, ये परवेज का बेटा, अल्लाह इसको सलामत रखे, बेचारा रो रहा है। अल्लाह किसी को इस अजियत और अजाब में ना डाले। ये एक माँ के लिए भी, खातून के लिए भी अजियत वाली जिंदगी है। अम्मा ते मेरे ते दिल बह गया गल सुन के। बच्ची अगवा कितनी देर रही है? 10 साल दे बाद पता लगा है। 10 साल पता ही नहीं इसकी बच्ची हाँ, वाला ही फोन किया। तुसा बच्ची ਨੂੰ नौकरी ते आप लवाया से? मैं भी नाल होंदी हामी वाला हूं जड़े अकेली छोड़ नौकरी ते तुसी भी नाल सो? हाँ जी। किंदे घर नौकरी करदे सो? ਉਹ ਅਸ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਰਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰਦਿਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਕਰਦੀ ਚਾਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਤੋਂ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲੀ ਅਕੇਲੀ ਅੰਦੀ ਪੀਉਂ ਜੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਸਕੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੱਲੀ ਅੰਦੀ ਪੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਤੇ ਅਮਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬਦਬਖਤ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਆਣੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮਦਦ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਤਿਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ केरा सजन बनता तू तासा खवाए से उनको पिलाए से रोटियां का काम ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਈਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? जी हाँ मैं मुदायना ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਸੇ मैं कोई ना करे सान ली माफ सजा ਉਹ ਨਾ भुगता ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਫਿੱਟ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। मैं माफ कहीं नहीं करेंगी उनको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन तकलीफ है, अजियत है और मालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह इनका हाफिज़ व नासिर हो, इनके लिए मुआवनत का मामला करे। बहरहाल हम सब के लिए इबरत की जाए। देखें, गुर्बत, मुफलिसी, हर वो शख्स जो मुफलिसी से पाक है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, सर्व सजूद हो, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए पनाह मांगी। करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वक्त हम जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। आमीन। और हमारा कोई सवाल आपको बुरा लगे तो हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है सर। ये क्या हुआ है? सर यही वाक़या हुआ है कि ये जो लड़का आया है ना यहाँ पे, किसी को पता नहीं था कि इसकी ये लड़का आपका दामाद था गांव का? नहीं सर, हाँ दामाद था। समझ लो, पता तो नहीं था कि शादी थी या नहीं थी। अच्छा, पता भी नहीं था? किसी को पता नहीं था। 3-4 महीने के बाद ही पता चला, कहता था कि मैं शादी करके आया हूँ। लड़की भी कह रही थी। अच्छा, ठीक है। बाद में ये जो है ना थोड़ा सा मसला हुआ था। वो लड़का जो है ना जावेद, और लड़की आपकी क्या लगती है? रिश्तेदार है। रिश्तेदार है? हाँ। आप लोगों को नहीं पता था कि बच्ची ने शादी कर ली आगे? असल में बात ये है कि ये पहले भी तो शादी कर गई थी। जब पहली शादी की थी तो ये भी किसी को पता नहीं था। जी, उमरकोट जब शादी हुई वो भी किसी को पता नहीं चला था। वो भी लव मैरिज? लव मैरिज था। और ये दूसरी लव मैरिज के चक्कर में पहली से अलहदगी की थी? जी बिल्कुल यही हुआ था। और वहां पर भी एक बच्चा था? 2 थे। 2 थे? जी 3। एक और, उनके पास है। हाँ, और 2 इधर। फौत हो गया। एक लड़की उसके पास है। यानी पहली शादी भी लव मैरिज थी और दूसरी भी लव पहली को छोड़ा दूसरी लव मैरिज? जी यही हुआ। अब आए जी दूसरे दामाद पर जिसने ये कत्ल किया। जी उसने, उसको क्या मरज था, क्या बीमारी थी? असल में सर वो बच्चों से कोई जंग थी? 6 साल के बच्चे से क्या जंग? हाँ, बात ये है कि वो जो है ना, जो इसका
जवेद का घर है ना, वो उसका चचाजाद भाई है लड़की का, ठीक है। वो रात या दिन को उनके घर झांकता था, वही परवेज कातिल जो है हाँ वो इनके घर झांकता था। अच्छा जी। तो एक दिन जवेद के बेटे ने कहा तू अपने घर में रह, हमारे घर नहीं झांका कर। कितने अरसे से वो आपके गांव में रह रहा था परवेज? 3 महीने तकरीबन हो गए होंगे जब आपको शादीशुदी का पता चला? अच्छा जी। ठीक है। उसके बाद जो है ना इन्होंने उसको रोका, तो लड़की ने इनको गाली देना शुरू कर दी, मेरे खामन को क्यों रोका। हाँ। बच्चे ने उसको चपाट मार दी। छोटे बच्चे ने? नहीं, वो उसका बेटा है ये खड़ा। अच्छा ठीक है। इसने उसको चाट मार दी। उसने उसी दुश्मनी की वजह से इन दोनों को जो है ना फंसाने के चक्कर में बच्चे को मार दिया। क्या इल्जाम इन पर जाए? इन पे लगा जाए। किसने मारा था? थप्पड़ किसने मारा था? वो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक सर। क्यों मारा था? सर वो लड़के का ना थोड़े चाल चलन सही नहीं था, इसलिए हमने मारा। तो आपके घर झांकता था? झांकता था तो हमने रोका, तो उसकी जो बीवी थी लव मैरिज वाले परवेज की, तो हमने उसको बोला कि इसको ज़रा तुम समझाओ। तो उसने आगे से हमें बोलने लगी कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये मेरा शोहर है, ऐसे वैसे अपना। तो फिर फिर चांटा रसीद कर मैंने कहा मैं अब्बू को बताता हूँ, तो फिर आप इसको समझाओ। उसने कहा जाओ बुलाओ अब्बू को, जिसको बुलाना मैं देख लूँगी। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा कहा, मैंने कहा अब्बू आपसे बड़े हैं, आपके कज़न भी हैं, तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो यानी वो आपके वालिद की कज़न खातून है? हाँ जी जी जी। उन्होंने फिर अब्बू को नाप शनाप बका, तो फिर मैंने फुफी हुई ना? हाँ इसलिए फुफी हुई ना? फुफड़ नू चंड कड़ मारी। जी फुफड़ जेड़ा है वो आ गया गुस्से च। जी जी हाँ जी। एवं सारे में बिल्कुल। तो फिर फुफड़ ने आप 10 तेला बेटा मारिया कि थोड़े ते इल्जाम? साढ़े उत्ते आ जाए सानू फसान लिए उन्हें कत्ल कर दिया अपना बच्चा। बच्चा कहाँ गया, निकला कहाँ था घर से जाने के लिए? घर से जाने के लिए मासी के घर, मासी के घर, खाला के घर वहीं गया हुआ था। वैसे रोज भी जाता था, बस उसने देखा कि वो जा रहा है, फिर उसने मौका देखा लेके चला गया उसको। बस लेके गया तो शाम तक किसी को पता नहीं चला। फिर मस्जिद में ऐलान करवा दिया। नहीं लबया जी, माँ ने भी ऐलान तो करवाते रहे यहीं पे, तो ये किसी ने नहीं बताया कि भाई ये खुद लेके गया है। क्या आप लोगों को पता था कि ये इस किस्म का एक दरिंदा भी आपके दरमियान रहता है? सर ये 6 महीने से कम यहाँ रह रहा था, बाहर नहीं आता था किसी के साथ। 3 से था 6 से था? पता शादी का 3 महीने पहले पता चला कि इसने निकाह कर लिया है, वो भी कोर्ट में। अच्छा। ये कह रहे थे कि हमने कोर्ट में निकाह कर लिया है, और अभी भी पता नहीं है कि किया है या नहीं किया। अभी भी निकाह फराम हमने देखा नहीं है इनका, ठीक है ना। 6 महीने से यहाँ रह रहा था। ये उस बच्चे पे पहले भी तशद्दुद करता था, अब्दुल्ला पे। क्यों? बस सुतेला बाप जो था उससे पानी भरवाता था, मारता था। तो उसके बाद ये मामला हुआ। परवेज जो कि कातिल है मुबैना तौर पर, और सुतेला बाप है अब्दुल्ला का। परवेज इस गांव का नहीं है? नहीं, इधर का नहीं है सर। कहाँ का है ये? सर रहीमर खां से आगे जमाली पुल कोई वहाँ का है। तो यहाँ से बहुत दूर है? बहुत दूर है सर, 200-250 किलोमीटर का। बिल्कुल ऐसे है सर। आप घर बार छड़ के थे आगे? वो उसके माँ बाप ने भी इसे रोका था कि वहाँ ना जाओ। ये वहाँ अपना घर छोड़ के यहाँ आया था। मुलजिम कब पकड़ा गया? मुलजिम तो हमने रात को पकड़वा दिया था। वो अंदर शरीफ बन के फिर रहा था? शरीफ, और वो खुद ढूंढने के चक्कर में हमारे साथ था। हाँ, चक्करबाजी तो ये कर रहा था ना। चोर उतो चितर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्हों कहते ने एक चोर उतो चितर हैं जी। मीसना बन के विचों विच कम पाई जा रहे थे, विचों विच रोया फिर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं मल्टीपल केसेस ऐसे रिपोर्ट कर चुका हूं। जैनब कत्ल केस हो, कसूर वाली नन्ही जैनब, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, वो भी, उसमें भी इमरान जो है यही कर रहा था। बीच में दिखाया गया था वो अंदर फिर रहा है, वो जनाजे अरेंज कर रहा है, फिर वो एहतजाज अरेंज कर रहा है, फिर वो एहतजाजों को साथ लेकर चल रहा है, इस तरीके से जैसे उसकी अपनी बेटी मर गई होती है। लेकिन वो बदबख्त रजील इंसान इस तमाम चीज को ऑपरेट कर रहा था। इस तरह के दर्जनों केसेस भरे पड़े हैं। सो पुलिस को शक कैसे गया, या आपको शक गया? हाँ, पुलिस को शक, हम शक सर हमें था। अच्छा जी। वो ना तशद्दुद करता था बच्चे पे, हमें ये पता था। फिर रात को हमने उसे उठवा लिया। हमें ये भी नहीं पता था कि बच्चा कत्ल हो गया है। डेड बॉडी मिलने से पहले? डेड बॉडी मिलने से पहले हमने रात को से 15 कॉल की थी, फिर उसे उठवा लिया था। फिर वो यहाँ पे भी यही कह रहा था, मैं तो साथ ढूंढवा रहा था, ऐलान करवा रहा था, यहाँ गया था वहाँ गया था। फिर सुबह में जब डेड बॉडी मिली तब हमें उस पर पक हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम सर चाहते हैं कि इसको सजा मिले, सजाए मौत दें। वजीर आला, वजीर आज़म को दरख्वास्त है हम इलाके वालों की, ऐसे आदमी को
फांसी होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरपुर सादात के इलाके में, और जो हैपनिंग यहाँ पर हुई है आप पीछे देख चुके हैं, वो बहुत दिल गिरफ्ता वाक़या है। एक सुतेला बाप अपने सुतेले बेटे को 6 साला बच्चा, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई ख़तरा नहीं, 6 साला बच्चे को बाकायदा नाले में गुते देकर मारता है और उसके बाद उसकी लाश को खेतों में फेंक देता है और जानवर वो लाश खा जाते हैं। इस वक्त हम मुतल्लिका थाने में मौजूद हैं और नूर खान साहब हमारे साथ इस वक्त बिराजमान है। नूर खान साहब SHO हैं मुतल्लिका थाने के, एंड ही इज़ द पर्सन। मेरे ख्याल से नूर भाई आप ही फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, आप सेहत अच्छी है? सर, क्या वाक़या है ये और कैसे ये रिपोर्ट हुआ और आप लोगों ने इसको अनर्थ कैसे किया? 23 सितंबर को 15 पे इतला मिली है कि एक बच्चा जो है ना, अब्दुल्ला नामी, वो पिछले 2 दिन से गुम है। अच्छा। फौरी तौर पे हमने रिस्पॉन्ड किया, मौके पे गए तो उसकी नानी जो मंजूर भाई थी उसको कंप्लेंट बनाया और फौरी हमने FIR दी गुमशुदगी। उसके बाद तलाश शुरू की है। अगले दिन सुबह हमें इतला मिली कि खेतों में एक डेड बॉडी बच्चे की पड़ी है, जिसकी एक दाई टांग जो है ना वो भी मिसिंग है। तो हमने फौरी तौर पर मौके पे गए, तो उसकी वालदा को बुला लिया है मौके पे, वो भी मौके पे आ गई थी। उसने शनाख्त की है कि ये मेरा बच्चा है जो गुमशुदा था। तो हमने आगे इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन, सस्पेक्ट्स को हमने किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी क्योंकि ये बच्चा धनी बख्श का बेटा था। ठीक है। इसकी वालदा उमरकोट से इसकी वालदा ने दूसरी शादी परवेज नामी शख्स से की हुई थी। अब वालदा भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उसने दूसरी शादी की हुई थी। बच्चे क्यों? केस परस्यू करने में बच्चे के मरने के बाद तो क्योंकि उनको थोड़ा बहुत जहन में था कि शायद बेबी खावंद ही जो उसका बच्चे का सैयद बाप है इसने मर्डर किया है। तो उसके जहन में, माँ के जहन में था कि उसके दूसरे खावंद ने उसके सगे बेटे को कत्ल किया और वो केस परसू करने में इंटरेस्टेड नहीं, वो हेजिटेट कर रही थी क्योंकि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। पुलिस के साथ उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया, ना ही उसकी वालदा ने और ना ही उसकी नानी ने। अच्छा। हमने अपने तौर पे इंटरोगेशन स्टार्ट की, भी केस जो है इनके घर से स्टार्ट हो रहा है, बच्चा इनसे घर के गुम हुआ है, गली में गुम हुआ है। अभी तक कातिल का नहीं पता, हमें पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था, उनको पता नहीं था, लेकिन शक था भी बेबी इसने मारा है, लेकिन कंफर्म उनको भी नहीं था। मैं एक सवाल नूसब करना चाहूँगा कि जो वालिदा और नानी है वो केस परसू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पुलिस के लिए ज़ाहिर है वो चैलेंज और ज़्यादा टफ हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बहुत। ये क्या चल रहा है क्योंकि मल्टीपल लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और कोई भी बच्चे के हवाले से बात नहीं करना चाहता। आइडेंटिफाई कैसे किया? इस तरह फिर क्लू मिले हमें कि लास्ट टाइम जो बच्चा है वो अपने सौतेले बाप के साथ देखा गया था, परवेज के साथ जब देखा गया 2-3 हमें आई विटनेस मिल गए, उनको हमने चेक किया, उनसे बयान लिए। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम हमने इसको देखा है कि बच्चा जो है ना ये अपने सौतेले बाप के साथ जा रहा। सौतेले बाप को हमने जब इंटरोगेट किया तो वो इनकार हो गया, भी मेरे पास नहीं है, मैं तो सारा दिन घर रहा हूँ, अपनी बीवी के साथ रहा हूँ। तो मज़ीद हमने तफ्तीश जारी की, हमें एक और क्लू मिला कि ये जो है ना बच्चे का मर्डर इसने किया है। एक हमें पकोड़े और समोसे वाली दुकान थी, लास्ट टाइम बच्चा उधर खड़ा हुआ था। अच्छा। तो वो आई विटनेस मिला हमें, उसने कहा है कि हमने इसको देखा है कि ये बच्चे को इधर से ज़बरदस्ती खींच के गली में लेके जा रहा है। अच्छा। जब इनका आमना सामना हमने किया है तो नाकाबिल तरदीद हमें शहादतें मिली। फिर वो चीज़ें डिस्कस की हैं उसकी वालदा के साथ, उसकी नानी के साथ, उन्होंने भी थोड़ा बहुत क्लू हमें दे दिया। भी हमें उन्होंने क्या क्लू दिया? उन्होंने कहा है कि ये हमें भी लगता है कि ये हमारा ही बच्चे का कातिल है।
تو یہ اس وقت ایبسکینڈر تھا, بھاگا ہوا تھا. اس کو ہم نے ٹریس کیا, پکڑا اسے انٹروگیٹ کیا. تو جب آئی وٹنس اس کے سامنے پیش کیے, سامنے کیے, تو وہ ایڈمٹ کر گیا. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی. اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیوں مارا؟ اس کے 2-3 ریزن تھی اس نے بتائی ہیں. نمبر 1 ریزن بتائی ہے کہ میں نے ایک جو شادی کی تھی آسیہ بی بی سے, وہ اس سے بھاگ کی تھی. آسیہ نے بھاگ کر پرویز سے شادی کی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پہلے خامن سے بھاگ کر, پہلے خامن سے بھاگ کے اس سے دونوں خاندان, پرویز کے والدین اور آسیہ کے خاندان, یہ دونوں ناخوش تھے. انہوں نے اعتراض بھی کیے ہیں. جو آسیہ کے خاندان والے تھے وہ پرویز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آسیہ پہ گالا گلوچ کرنا, اس پہ تشدد کرنا, جو ان کے رشتہ دار تھے, کزن تھے, وہ اکثر کرتے تھے. آسیہ کے ساتھ ایک نیگلیکٹڈ بیہیویئر تھا ان کا. کیونکہ آسیہ کا والد فوت ہو چکا تھا, اس کا بھائی بھی نہیں تھا. وہ 2 بہنیں تھیں, یتیم بہنیں تھیں, دونوں میرڈ تھی. تو آسیہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی. تو اس وجہ سے پرویز سے جب ہم نے پوچھا ابھی آپ نے مرڈر کیوں کیا, اس نے کہا کہ میری بیوی کو انہوں نے مارا تھا اور گالا گلوچ کی تھی. اور بیوی کو تو مارا, بیوی کو کے ساتھ تو جو جھگڑا ہوا, پرویز نے ہمسایوں کے گھر نظر ڈالی, جھگڑا ہوا, پرویز کی بیوی نے اپنے خامند کا ساتھ دیا اور دوسرے گھر کو گالی گلوچ کی, اور خامند نے اپنی ہی بیوی جو اس کی معاون و مددگار ہے اسی کا بچہ مار دیا. یہ کزن سے کیسا بدلا ہو گیا؟ یہ تو اپنے گھر سے بدلا ہو گیا. اس میں ہمارا جو معاشرہ ہے نا, یہ بہت بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ ایکٹ کر کے ہم دوسروں سے بدلہ لے لیں گے, اپنا بچہ مار. اب انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. اس وحشی درندے نے اپنے ہی سوتیلے بیٹے کو مار کے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ وقوع ہے. نور خان صاحب, کوئی پیغام ایز اے پولیس آفیسر, ایز اے سیویئر آف دا نیشن جو دینا چاہیں بروکن فیملیز کے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے؟ ہمارا معاشرہ بہت بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. ہمیں والدین کو بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ناسمجھ ہوتے ہیں, انہیں اپنے اچھے برے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہم جو بڑے ہوتے ہیں یہ ان کا خاص خیال رکھ سکتے ہیں, ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, ان کو کن کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, کن کے ساتھ وہ رہتے ہیں, کن کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں, ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں, اچھے بچے ہوتے ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے والدین سے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تھینک یو. SHO نور خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور وہ اس حادثے, سانحہ واقعے اور بدبختی سے اٹے ہوئے معاملے کا منظرنامہ جو ہے وہ آپ کے حضور پیش کر رہے تھے. جاتے جاتے ایک ہمبل سبمیشن کہ ایک اولاد کی قیمت کیا ہے. دیر واز اے ٹائم جب بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ یا پیو نو پوچھ لو یا ماں نو پوچھ لو. آج جس سیرہ سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ایسی ایسی چیزیں رپورٹ کرنا پڑتی ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم باپ کے حوالے سے کیا بتائیں اور ماں کے حوالے سے کیا بتائیں. دعا کہ مالک کائنات ان بچوں کا تحفظ کرے, خود کرے, بیکاز ہم انسان ہیں اور ہم بدبختی کی کسی اور ہی منزل پر موجود ہیں. اللہ سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے. اجازت چاہیں گے. السلام.